Good morning, grade 3. Welcome in science class. Learners, as you know, we are studying our chapter measurement. So, we will continue the chapter. Now, measurement of mass. Mass tells us how much heavy or light an object. Learners, to know about the any object, this is heavy or light, भारी है या हल्का है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट करना पड़ता है. A fruit seller and vegetable seller uses weighing balance for measuring mass. Fruit seller and vegetable seller measure करके देते हैं. A grocer and goldsmith use electronic balance for measuring mass. Grocer means a merchant sells something just like flour, sugar, etc. And goldsmith sells the materials made by gold. Yes, goldsmith uses electronic balance. Here we can see kilogram is the unit used for measuring mass. It is written as kg. The short form of kilogram is kg. Heavy objects like fruits and vegetables are measured in kilograms. You know, when you buy some fruits or vegetables, this is measured as a kilograms. Half kg, 1 kg. Okay? Light objects are measured in grams. Gram is written as G. Kilogram written as kg and only grams written as G. 1 kg is equal to 1000 gram. Okay? Now, we will read about measuring the capacity. We cannot measure a liquid thing in kilogram. Okay? We will measure it as measuring in a measuring cylinder. This is a measuring cylinder. Capacity is the amount of liquid a container can hold. The commonly used unit for measuring capacity is liter. Liquid को हम लीटर में मेजर करते हैं. It is written as L. Large amount of liquids like milk and petrol are measured in liters. Small amounts of liquids are like shampoo and eye drops are measured in milliliters. Learners, बड़ी चीज को हम किसमें लीटर में काउंट करते हैं और स्मॉल थिंग्स को मिलीलीटर्स में. Milliliter is written as ml. A measuring cylinder is used to measure the amounts of liquids. We can see here measuring cylinder. There are so many points in this cylinder. 1 liter is equal to 1000 milliliter. Milliliter is smallest amount and liter is bigger than milliliter. So, learners, we can know about the measurement here. Learners, I am sending the PDF about measurement. You have to do that in your science notebook. Okay? समय का माप. समय को हम कैसे नापते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. What do you use to check time? समय नापने के लिए. चेक मेजर करना, नापना. कैसे मेजरमेंट ऑफ टाइम हम करते हैं, किस चीज़ का उपयोग करते हैं समय का पता लगाने के लिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट डू वी यूज. यस, वी यूज अ वॉच और क्लॉक टू चेक टाइम. समय को नापने के लिए, जांचने के लिए, हम एग्जामिन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं. रिस्ट वॉच या अलार्म क्लॉक या फिर वॉल क्लॉक. राइट. यस, समय को देखने के लिए हम क्या समय है, इसके लिए हम वॉच या
क्लॉक, घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड्स। यूनिट इकाई, टाइम नापने की इकाई क्या है? सेकंड है। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। इट इज रिटन एज एस। सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं? एस। एस का फुल फॉर्म सेकेंड्स। टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन आवर्स एंड मिनट्स। समय को हम, आवर्स होते हैं घंटे और मिनट्स मिनट, समय को हम घंटों और मिनट्स में भी नाप सकते हैं, जांच सकते हैं। आपको पता है ना कितने घंटे हुए हैं, कितनी मिनट हुई हैं? आप में से कुछ लोगों को घड़ी देखनी भी आती होगी। तो समय को हम कैसे घंटे, मिनट और सेकंड्स में नाप सकते हैं। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? समय के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो समय को हमने कैसे नापा? घंटे, मिनट और सेकंड्स में। 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, मतलब 60 मिनट होते हैं तब 1 घंटा होता है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है। इट मीन्स सेकेंड सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा क्या हुआ? मिनट। देन आवर इज बिगर देन मिनट्स। घंटा, मिनट और सेकेंड्स। तो चलिए लर्नर्स, अब हम टाइम की एक एक्टिविटी करते हैं। यस, द स्मॉल needle is on 6 and biggest is on 12. So this is 6 o'clock. What is the time in by this watch? This is 6 o'clock. This is 7:30. And here in third clock, तीसरी घड़ी में क्या है? 10:15. 10:15 पास हो चुके हैं। एंड दिस इज 7:45. 8 बजने में अभी 1 क्वार्टर है। क्वार्टर क्या होता है? 1/4। तो यहाँ 7:45, 7:45 हुआ है। तो सो दिस वॉज द टाइम एक्टिविटी. नाउ वी विल रीड about the measurement of temperature. Measurement of temperature. Temperature tells how hot or cold an object is. Temperature मतलब तापमान. The degree of internal heat of a person's body. Temperature tells how hot or cold an object is. Temperature से कोई चीज़ कितनी hot है. Hot means गर्म और कोल्ड मीन्स ठंडी. ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है. जैसे आजकल हमारा, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है. व्हाट डज अ डॉक्टर यूज टू मेजर टेम्परेचर व्हेन यू हैव फीवर. जब आपको बुखार होता है, फीवर मीन्स बुखार, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब डॉक्टर क्या यूज करता है? एक डिजिटल थर्मोमीटर. एक डॉक्टर आपके फीवर को चेक करने के लिए, टेम्परेचर को चेक करने के लिए किस चीज का यूज करता है? अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर. एक थर्मामीटर किसी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. आपको पता है टेम्परेचर किस में मेजर होता है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. आपको पता है एक आम आदमी की, नॉर्मल मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस
या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक किया जाता है। डिग्री सेल्सियस इज रिटन एज डिग्री सी एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज रिटन एज डिग्री एफ। यू नो, जो थर्मामीटर होता है उसमें ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें पता चल जाता है थर्मामीटर में। आजकल जैसे डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं तो उसमें कोई भी बच्चा इजीली टेम्परेचर चेक करना सीख सकता है। एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज दिस, 37 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक नॉर्मल मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो लर्नर्स, यहाँ हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। इसी तरह हमारा हर शहर का, कंट्री का अलग अलग टेम्परेचर होता है। सो learners, if you have any problem you can ask me, because this chapter has been completed. I am sending the PDF of this chapter you. Okay, you can call me if you have any problem. Thank you, have a nice day.